ان میں جہاں سب سے مشہور نام 1967 کی جنگ میں فلائٹ لیفٹیننٹ سیف العظم کا ہے، وہیں 1974 میں فلائٹ لیفٹیننٹ ستار الوی نے بھی ایک اسرائیلی معراج طیارہ مار گرایا۔ یہ کور آل آج ایک وار ٹرافی کی صورت میں اس میوزیم میں شائقین کو اپنا دیدار کراتا ہے۔ ایک تازہ ترین حصہ آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کے نام سے مختص ہے، جہاں دشمن کی جانب سے رچائے جانے والے ڈرامے کا تفصیلی تذکرہ اور اس کے نتیجے میں درانداز ہونے والے مگ 21 بائسن کو مار گرانے اور بھارتی ونگ کمانڈر ابھینندن کو جنگی قیدی بنانے کی پوری داستان سمجھائی گئی ہے۔ ابھینندن کے طیارے کی باقیات اور اس سے برآمد ہونے والے سامان، جس میں اس کا فضائی سوٹ، چشمہ، چاقو، پسٹل اور دیگر اشیاء شامل ہیں، سب کو بڑے احسن طریقے سے دکھایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان فورسز کی جانب سے پیش کیا گیا وہ ہمدردی بھرا مشہور زمانہ چائے کا کپ بھی اسی حصے میں شجاعت کی ایک یادگار مثال بنا کر رکھا گیا ہے۔ اسی گرد و نواح کی ایک دیوار پر دنیا بھر کی میڈیا کی طرف سے اس واقعے کی کوریج کی مختلف کٹنگز آویزہ کی گئی ہیں، جس کے ساتھ ہی اس طیارے کو نشانہ بنانے والے پاکستانی شاہینوں کے زیر استعمال رہنے والی چیزوں کو بھی نمائش کی زینت بنایا گیا ہے۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ اس تمام فضائی آپریشن کی جھلکیاں اور بھارتی طیاروں کو چکنا چور کرنے کے مناظر تصویر کشی کے ذریعے صاف صاف دکھائے گئے۔ پاک فضائیہ کی تاریخ شجاعت و عظمت کی انگنت داستانوں اور واقعات سے بھری پڑی ہے۔ کامیابی کے سحروں سے سجی اس تاریخ کو زندہ و جاوید رکھنے اور آنے والی نسلوں کو ایک یادگار ماضی سے روشناس کروانے کے لیے کراچی میں شاہراہ فیصل کارساز فلائی اوور کے قریب پاکستان ایئر فورس میوزیم کو قائم کیا گیا ہے۔ پی اے ایف میوزیم کو ابتدائی طور پر 1990 میں 2 ناقابل استعمال ہینگرز میں قائم کیا گیا تھا۔ تاہم بعد ازاں 1997 میں اس کی توسیع کرتے ہوئے میوزیم کو پاک سے منسلک کر دیا گیا اور تب اس کا باقاعدہ افتتاح اس وقت کے چیف آف ایئر سٹاف ایئر چیف مارشل عباس خٹک کے ہاتھوں ہوا۔ میوزیم کے احاطے میں داخل ہوتے ہی سرسبز پارک کے رنگ برنگے پھول پودے، پارک کی صفائی اور تزئین و آرائش دیکھنے والوں کے دل و نگاہ کو تازگی بخشتی ہے۔ اسی سبزے کے بیچوں بیچ پاک فضائیہ کے زیر استعمال رہنے والے 30 سے زائد جہاز فضائیہ کی تاریخ کا پتہ دیتے ہیں۔ پارک سے میوزیم کی جانب بڑھیں تو میوزیم جسے آرکائیو کا نام دیا گیا ہے، اس سے متصل شہداء وال پر اب تک کے پاک فضائیہ کے تمام شہداء کے نام، ملکی فضائی سرحدوں کی حفاظت کے لیے جانوں کے نذرانے پیش کرنے والوں کو خراج تحسین پیش کرنے اور ان کی خدمات کا اعتراف کرنے کے لیے تمغوں کی طرح سجائے گئے ہیں۔ میوزیم کی عمارت میں داخل ہوتے ہی مختلف جہازوں اور طیاروں پر نظر پڑتی ہے، جن میں سب سے پہلے قائد اعظم محمد علی جناح اور مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کے مجسموں کے ساتھ موجود ان کے ذاتی استعمال میں رہنے والا طیارہ وائکنگ پارک کیا گیا ہے۔ برطانوی ساخت کا یہ مسافر بردار طیارہ 1948 میں حکومت پاکستان نے خریدا، جبکہ اس کی فلائنگ اور دیکھ بھال کی ذمہ داری پاک فضائیہ کی تھی۔ اور یہ ہے جہاز کا اندرونی منظر، کاکپٹ، اور یہ وہ نشستیں جن پہ قائد اعظم، محترمہ فاطمہ جناح اور قائد کے اے ڈی سی تشریف رکھتے تھے۔ 1955-56 تک زیر استعمال رہنے والے اس طیارے کے کچھ دوسرے اہم مسافروں میں ہمارے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان، دوسرے گورنر جنرل خواجہ ناظم الدین، اس کے علاوہ اس وقت کے سعودی عرب، اردن اور عراق کے بادشاہ اور ایران کے شہنشاہ بھی شامل ہیں۔
म्यूजियम की दीवारों पर मुख्तलिफ नकूश और तस्वीर पाकिस्तान एयरफोर्स के मुख्तलिफ अदवार की भरपूर अक्कासी करते हैं। जैसे ही आप दाखिली रास्ते के साथ मुल्हिका सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं तो आप एक गैलरी में पहुंचते हैं जिसमें अब तक के तमाम एयर चीफ्स की तस्वीर और उनके हालात जिंदगी या बायोग्राफीज आवेजा की गई हैं। जबकि इसके मुकाबिल दूसरी साइड की सीढ़ियां, वहां पे एयरफोर्स के मुख्तलिफ अदवार की यूनिफॉर्म्स के नमूनों की नुमाइश आपको नजर आती है। यहाँ 1965 की जंग में दुनिया भर की फिजाई तारीख में अपना नाम सब्त करवाने वाले मोहम्मद महमूद आलम यानी स्क्वाड्रन लीडर MM आलम का मुजस्समा उनके ही तैयारे के साथ मौजूद है। MM आलम जिन्होंने महज 1 मिनट में दुश्मन के 5 तैयारों को नीस्तो नाबूद करके ये मुनफरिद एजाज अपने नाम किया था। और यही वो सेबर जहाज है जिसके साथ दुनिया भर में पहली मर्तबा पाक फिजाइया ने 1958 में 16 जहाजों के फॉर्मेशन एरोबेटिक्स का मुजाहिरा करते हुए एक उमूदी दायरा यानी वर्टिकल लूप बनाया। इस हैरत अंगेज फिजाई मुजाहरे की क़यादत उस वक्त के विंग कमांडर MZ मसूद ने की और यह मुजाहिरा उस वक्त के अफगानिस्तान के बादशाह शाह ज़ाहिर शाह के एजाज में किया गया। हॉल में दीगर छोटे बड़े तैयारे भी एयरफोर्स की तारीख के मुख्तलिफ अदवार को उजागर करते हैं। इसी हॉल के एक तरफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की तर्जुमानी के लिए मुख्तलिफ जदीद आलात और उनके अफ़ाल व अफादियत को उजागर किया गया है। इस म्यूजियम का एक हिस्सा पाकिस्तान एयरफोर्स की पहली खातून शहीद फ्लाइंग ऑफिसर मरियम मुख्तार के लिए मुख्तस किया गया है, जो उनकी आला सलाहियतों और फनी महारतों की गममाजी करता है। यहाँ शहीद मरियम मुख्तार के ज़ेर इस्तेमाल रहने वाली मुख्तलिफ अशिया को भी महफूज कर लिया गया है। 1965 और 1971 की जंगों के मुख्तलिफ वाक़यात भी पेंटिंग्स के ज़रिए महफूज किए गए हैं। आर्काइव गैलरी में मजीद 6 गैलरीज हैं जिन्हें मुख्तलिफ हवालों से खास अहमियत हासिल है। पहली गैलरी अब तक की फ़ज़ाई जंग की तारीख का अहाता करती है। दूसरी गैलरी में दुनिया भर के फाइटर जहाज़ों का तारुफ करवाया गया है। तीसरी गैलरी शुहदा के लिए मुख्तस है। चौथी गैलरी में 1965 और 1971 की जंगों में कारहाय नुमायां सर अंजाम देने वालों के कारनामों पर रोशनी डाली गई है। पांचवी गैलरी एयरफोर्स के मुख्तलिफ स्क्वाड्रन्स की कामयाबियों, जबकि छठी गैलरी पाकिस्तान एयरफोर्स के मुख्तलिफ बेसिस की तारीख और कारकर्दगी को बड़े बातरतीब अंदाज में जाहिर करती है। और ये है T-Bird T-33। इसी नौइयत के एक तैयारे में पाक फ़ज़ाइया के पहले निशाने हैदर पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास ने शहादत पाई। उन्होंने शहादत पाई लेकिन दुश्मन के इलाके में अगवा होकर जाना मंजूर न किया। इसी तरबियती तैयारे ने बरसों पाक फ़ज़ाइया के हज़ारों हवाबाजों को जंगी परवाज़ों की इब्तदाई तरबियत दी। और ये है मार्टिन B-57 कैम्ब्रा, पाक फ़ज़ाइया का वाहिद डे एंड नाइट बमबार तैयारा जिसने 1965 और 1971 की जंगों में दुश्मन के हवाई अड्डों और दीगर अहदाफ को शदीद नुकसान पहुंचाकर पाक फ़ज़ाइया की फ़िज़ाई बर्तरी में अहम किरदार अदा किया। इसी तरह ज़माना अमन में पाक फ़ज़ाइया दुनिया की पहली एयरफोर्स थी जिसने इतने बड़े जहाज की 4 शिप फॉर्मेशन में एरोबेटिक्स करते हुए विंग कमांडर नज़ीर लतीफ़ की क़यादत में
उमूदी दायरा यानी एक वर्टिकल लूप बनाया। ये जहाज 1980 की दहाई में रिटायर कर दिए गए, लेकिन 1965 की जंग से वाबस्ता एक सरबस्ता राज 2017 में आकर खुला। जी हाँ, ये था 8 पास चार्ली। ये नाम भारतीय फिजाइया के पायलटों ने पाक फिजाइया के उस बहादुर पायलट को दिया जो B-57 तैयारे से आदमपुर के हवाई अड्डे पर हमला करने आता था। तो रिवायत के बरक्स जहां पे एक ही पास में 8 के 8 बॉम्ब्स गिरा देने चाहिए, वो बहादुर पायलट 8 पास में एक एक करके 8 मरतबा अपने हदफ को निशाना बनाता था। ये राज 2017 में खुला। आइए देखते हैं कि इस 8 पास चार्ली के बारे में भारतीय फिजाइया के एक पायलट ने तब क्या कहा था। Paddy Earl, an Indian Air Force fighter pilot, he says, "I have the utmost respect for the Pakistani Canberra bloke who loved to ruin the equanimity of our dreary lives. 8 pass Charlie was an ace, but he had this nasty habit of turning about 30 minutes after moonrise, just as we were downing our first drink. Seriously, he was a cool dude and a professional of the highest order. To disguise the direction of his run, he used to cut throttles before entering a dive, and by the time the ack opened up, he was beneath the umbrella of fire. After dropping his load, he would apply full throttle and climb out above." अब देखते हैं इस म्यूजियम की सबसे अहम वॉर ट्रॉफी। ये है एक नेट तैयारा जो पाक फिजाइया का नहीं बल्कि भारतीय फिजाइया का है, और ये नेट यहाँ पे भारतीय फिजाइया पर पाक फिजाइया की दहशत का बय्यन सबूत है। 1965 की जंग के दौरान भारतीय फिजाइया के नेट स्क्वाड्रन के कमांडर स्क्वाड्रन लीडर बृजपाल सिंह और उसके दीगर 7 साथियों का पाक फिजाइया के कुछ सेबर और एक F-104 ने रास्ता रोका। बृजपाल सिंह के तैयारे को F-104 के पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट हकीमुल्लाह ने, जो बादअज़ां पाक फिजाइया के सरबराह भी बने, घेर कर पाकिस्तान के एक मतरूक हवाई अड्डे पर उतरने पर मजबूर कर दिया। हिंदुस्तानी फिजाइया ने कहा कि पायलट ने किसी तकनीकी खराबी की वजह से वहां पे लैंड किया, जबकि हकीकत यह है कि अगले ही दिन पाक फिजाइया के फ्लाइट लेफ्टिनेंट साद हातमी बड़ी महारत से उस बिल्कुल फिट जहाज को वहां से उड़ाकर एक मेन ऑपरेशनल बेस पर ले गए, और आज ये वॉर ट्रॉफी PAF म्यूजियम की जीनत और पाक फिजाइया की बर्तरी का सबूत देखने वालों की आंखों को मुहैया करती। इनमें जहां सबसे मशहूर नाम 1967 की जंग में फ्लाइट लेफ्टिनेंट सैफुल आजम का है, वहीं 1974 में फ्लाइट लेफ्टिनेंट सत्तार अलवी ने भी एक इसराइली मेराज तैयारा मार गिराया। ये कवरऑल आज एक वॉर ट्रॉफी की सूरत में इस म्यूजियम में शायकीन को अपना दीदार कराता है। एक ताज़ा तरीन हिस्सा ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के नाम से मुख्तस है, जहां दुश्मन की जानिब से रचाए जाने वाले ड्रामे का तफसीली तस्करा और उसके नतीजे में दरअंदाज होने वाले MiG-21 बाइसन को मार गिराने और भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन को जंगी कैदी बनाने की पूरी दास्तान समझाई गई है। अभिनंदन के तैयारे की बाकियात और उससे बरामद होने वाले सामान, जिसमें उसका फिजाई सूट, चश्मा, चाकू, पिस्टल और दीगर अशिया शामिल हैं, सबको बड़े अहसन तरीके से दिखाया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान फोर्सेस की जानिब से पेश किया गया वो हमदर्दी भरा मशहूर ज़माना चाय का कप भी इसी हिस्से में शुजाअत की एक यादगार मिसाल बनाकर रखा गया है। इसी गिरदोनिवाह की एक दीवार पर दुनिया भर की मीडिया की तरफ से इस वाक़े की कवरेज की मुख्तलिफ कटिंग्स आवीज़ा की गई हैं, जिसके साथ ही इस तैयारे को निशाना बनाने वाले पाकिस्तानी शाहीनों के ज़ेर इस्तेमाल रहने वाली चीज़ों को भी नुमाइश की जीनत बनाया गया है। दिलचस्प अमर यह है कि इस तमाम फ़िज़ाई ऑपरेशन की झलकियाँ और भारतीय तैयारों को चकनाचूर करने के मनाजिर तस्वीर कशी के ज़रिए साफ साफ दिखाए गए। यह म्यूज़ियम पाक फ़िज़ाइया की फ़न्नी अज़मत, बेबाकी और दलेरी की मुँह बोलती तस्वीर है, जिसकी फ़िज़ा आज भी उन फ़िज़ाई शहीदों के जज्बे और हौसले को सलाम कर रही है। हर पाकिस्तानी अपनी ताकत, हिम्मत और हौसले की असल पहचान के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स म्यूजियम कराची ज़रूर आए, ताकि आपका दिल फ़ख्र से कह सके कि मैं पाकिस्तानी हूँ और मुझे अपने शाहीनों पर फ़ख्र है।